Assalamu alaikum class 7th. Okay beta, today I am going to explain some basic definitions that you will find on your math book of Punjab textbook mathematics. Okay, you have to follow Punjab textbook of mathematics instead of countdown 7th. Okay, so starting from the first definition, which is algebra. Algebra is an Arabic word which means bringing together broken parts. It means we have to combine broken parts with the help of mathematical sign, addition, subtraction, multiplication and division. So what is the definition of algebra? Algebra is one of the useful tools of mathematics. It uses mathematical statement to describe the relationship between the things that vary over time. Okay, जो टाइम के साथ साथ वेरी होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, उनको कलेक्ट करना with the help of mathematical sign. Now moving towards next slide, which is constant, anything that does not vary or change a value number, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल जो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट है, पाई है, ये कांस्टेंट, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती. सो मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट स्लाइड, I will show you some example in our next slide as well. Speed of light, number of minutes in an hour, etc. ठीक है, they are all of them are called constant. Variable, from variable, it नाम से जाहिर है, that can vary its value. In all English alphabets, there are 26 English alphabets. All are known as a variable in mathematics. Anything that can vary or change in value. ठीक है बेटो, इनको मैथ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? We are using it English alphabets like X, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z. ये सारे जो words हैं English alphabets हैं, इनको हम use करते हैं represent करने के लिए variables को. A variable is just a number that can change in value. Okay बेटा. Now moving towards our next slide. Example है a child height, outdoor temperature, the price of the gold. They are all variable. इनको हम vary कर सकते हैं. Price of gold change होती रहती है. Child height वक्त के साथ चेंज होती रहती है, वेरी होती रहती है. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड वेरिएबल. नेक्स्ट इज कोफिशिएंट, अ नंबर. व्हाट इज कोफिशिएंट? नंबर इन फ्रंट ऑफ अ वेरिएबल आर टर्म. अब यहाँ पे फिगर में जो पर्पल कलर से शो हुआ है, दीज पर्पल कलर्स आर रिप्रेजेंटिंग कोफिशिएंट. हियर 6 इज कोफिशिएंट, 1 इज कोफिशिएंट, 2 इज कोफिशिएंट. और हम कह सकते हैं हियर एक्स एंड वाई आर योर वेरिएबल्स. ओके, next is another definition coefficient. It is used as the first number in the equation but is a number used to multiply the variable. पहला नंबर जो हम यूज करते हैं उसको भी हम कोफिशिएंट कहते हैं. यहाँ पे जो यूज हो रहा है पहला नंबर 4 है, दिस इज योर कोफिशिएंट, x इज योर वेरिएबल एंड 7 इज योर कांस्टेंट. देखो ये कांस्टेंट है 7, 5 इज आल्सो योर कांस्टेंट, दैट x इज योर वेरिएबल एंड 4 इज योर कोएफिशिएंट. ओके बेटा. देन लिटरल. The alphabets that are used to represent constant or coefficient are called literals. वो alphabets जो constant को या coefficient को represent कर रहे हों उनको हम कहते हैं literals. For example, यहाँ पर A, B and C, यहाँ पे X वेरिएबल है और A और B and C क्या है? ये आपके literals हैं. ठीक है, ये unknown values होती हैं, इनको हम मालूम भी कर सकते हैं. Now moving towards next definition, which is term. अगर हम coefficient को, वेरिएबल को और पावर को एक साथ लिख दें, वो तीनों मिलकर टर्म बनाती है. एनी नंबर दैट इज एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड. फॉर एग्जांपल x प्लस वाई, यहाँ पे x प्लस वाई दो टर्म्स है. x एक टर्म है, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसकी पावर भी 1 है. जिसका कोफिशिएंट या पावर मेंशन नहीं होती उसकी 1 होती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक और हमारे पास है, ये भी एक टर्म है, y इज आल्सो टर्म, 7 इज आल्सो टर्म, हैविंग कोफिशिएंट 1 and 1, x. y का भी कोफिशिएंट 1 है, पावर भी 1 है, बट 7 इज योर, ये टर्म तो है लेकिन इसको हम कांस्टेंट भी कहते हैं. ठीक है बेटा. नेक्स्ट डेफिनेशन इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. हम कह सकते हैं कि वन टर्म और मोर देन वन टर्म जॉइन टुगेदर टू फॉर्म एक्सप्रेशन. अब जहाँ पे देखो 5x प्लस 3 एक एक्सप्रेशन है, 5x प्लस 3 एक्सप्रेशन है. क्यों? इट इज कंसिस्ट ऑफ two terms and one term is 5x, second term is 3. So both the terms join together to form a expression. Well, 5 is your coefficient and x is your variable. और यहाँ पे जो 3 है second term है, this is your constant.
ये भी डेफिनेशन है 5x + 3 दिस इज योर एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 टर्म्स अगेंस्ट xy - 2x + y दिस इज योर एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ 3 टर्म्स ओके बेटा। अब इन जो 2 टर्म्स होती हैं जिनमें 3 टर्म्स होती हैं 1 टर्म होती हैं ये उनको हम क्या नाम लेते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। This is algebraic expression definition, a mathematical phrase that may contain variables, constant and or operations. Okay, और ऑपरेशन से मुराद होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अच्छा, जिसमें एक वो एक्सप्रेशन जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म हो उसको हम मोनोनोमियल बोलते हैं। अ मोनोनोमियल, अ पॉलिनोमियल विद एग्जैक्टली 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोनोमियल। लाइक दिस, यार एग्जांपल्स हैं सारी एक एक टर्म है। ax का स्क्वायर इज ओनली 1 टर्म, so that's why it's called mononomial. And similarly 2x⁴ is also consist of only 1 term, so that's why it is called mononomial. And similarly if we have 2 terms then we can say that it is a binomial. A polynomial with exactly 2 terms are known as binomial. x - 8 r - 3 आप कह भी सकते हो expression consisting of 2 term or expression consisting of 1 term is called mononomial. Expression consisting of 2 term are known as binomial. And similarly, if expression are a polynomial consisting of 3 terms, then it is called trinomial. Okay, बेटा, अब देखो यहाँ पे 3 terms हैं। नंबर 1 टर्म x का स्क्वायर, नंबर 2 टर्म x, नंबर 3 टर्म -8। सो तीनों मिलके क्या बना रही हैं? ट्राइनोमियल। ओके बेटा, अब टर्म की अलग से कोई डेफिनेशन भी दे दिया। नंबर है प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड वेरिएबल रेज टू अ पावर। आर सिंपली आप ये भी लिख सकते हो term is consist of 3 things: variables, coefficient and power. जैसे ये है, this is your 1 term, 5 is your coefficient, x is your variable, while this is your power. ठीक है, so it is called a term. कोफिशिएंट बताया आपको मैंने पहले डिफिनेशन में, द नंबर फैक्टरिंग ऑफ ईच टर्म। जैसे यहाँ पे 5x का स्क्वायर में 5 is your coefficient, -2 is your coefficient and 9 is your coefficient, while x and here x and y is your variables. Constant, अगर वेरिएबल साथ ना हो, like this 3, -6, 5 and 12 are your constant. ओके बेटा, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन भी आप लिख लेना बेटा। A finite sum of terms of the form aXn, where a is your coefficient, x is your variable, where n is your power, where a is a real number and n is a whole number. ओके, ये एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल की, इसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है बेटा, अगर हम इसको एज अ होल लें तो यहाँ पे देखो बेटा 5x इज योर टर्म, वेयर 5 इज योर कोफिशिएंट, x इज योर वेरिएबल एंड दैट 7 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। एंड अगर हम इन दोनों को पढ़ें 5x + 7 को, तो बोथ आर नोन एज अ टर्म, 2 टर्म्स, और दोनों टर्म्स मिलकर क्या बना रही हैं? एक्सप्रेशन। ओके बेटा, और इस पूरी वैल्यू में, पूरी इक्वेशन में 3 टर्म्स है। नंबर 1 इज 5x, नंबर 2 टर्म इज 7 एंड नंबर 3 टर्म इज √2। Now this is your exercise chapter number 8 algebraic expression of mathematics book. कौन सी बुक बेटा? पंजाब टेक्स्ट बुक आपने फॉलो करनी है। सॉफ्ट कॉपी आपके ग्रुप में मैम ने शेयर की हुई है। Now these are also some basic definition, आप ये भी कॉपी पे इसको भी लिख सकते हो। जो भी डेफिनेशन आपको बेटा इजी लगती है, आप लिखना चाहते हो, आपके पास चॉइस है, वो लिख सकते हो। Either you are writing taking the definition from the book or from the slide, it's your choice. Okay, now this is your exercise 8.1, not 8.8. okay बेटा, 8.8 आपकी काउंट डाउन में है, यहाँ पे 8.1 है। Now question number 1 is add the terms, so write the algebraic expression. आपने सिर्फ इनको ऐड करना है, आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन पुट करने हैं। ठीक है, कैसे मैं आपको आगे बताता। और मेरे पास बेटा यहाँ पे that e-book have पेज नंबर 4, बट इफ यू हैव, आपके पास बाजार से आपने एक बुक परचेज की है, मे बी वहां पे पेज नंबर चेंज हो। ओके, मेरे पास जो ई बुक है, और आपके ज्यादा स्टूडेंट जितने भी उनके पास ई बुक्स होंगी, उनके पास पेज नंबर 4 शो हो रहा होगा। ओके, these are also definition from the book. If you want to write these definition, it's fine बेटा, जो भी आपको इजी लगता है आपने वो लिखनी है, स्लाइड वाली या बुक वाली। नाउ दिस इज योर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। आपने सारे पार्ट्स कॉपी पे करने। राइट
कांस्टेंट एंड वेरिएबल यूज इन एक्सप्रेशन, जैसे पार्ट 1 एक्स प्लस 3, यहाँ पे कांस्टेंट 3 है और वेरिएबल एक्स है. सिमिलरली इन पार्ट 2 हमारे पास क्या है, वेरिएबल कौन कौन से हैं, ए इज योर वेरिएबल वाइल बी एंड -2 इज योर कांस्टेंट. 2x का स्क्वायर -1 में, पार्ट 5 में x इज योर वेरिएबल वाइल -1 इज योर कांस्टेंट. ठीक है, सिंपल इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3 में आइडेंटिफाई मोनोनोमियल, बायोनोमियल एंड ट्राइनोमियल. सब पहला पार्ट है x प्लस वाई माइनस सी, बिकॉज इट इज कंसिस्ट ऑफ 3 टर्म्स, that's why they are called trinomial. But if we see part number 2, it is consist of only one term, minus 6i minus 6l, so that's why it is called mononomial. While part third 2x का square minus 3, अगर आप इसको देखो, it is consist of just 2 terms, so that's why it is called binomial. तो अगर एक टर्म होगी एक्सप्रेशन में तो उसको हम कहते हैं मोनोनोमियल, 2 टर्म्स होंगी तो बायोनोमियल और 3 टर्म्स होंगी तो ट्राइनोमियल. ओके बेटा, अब ये जैसे क्वेश्चन था इसमें हमने एडिशन का साइन पुट करना है सिर्फ. सो 2ab प्लस 3bc प्लस c है पार्ट 1. ठीक है, बट अगर हम पार्ट 2 में देखें -2ab प्लस a प्लस -bc, हमने एडिशन का साइन तो हमें पुट कर दिया. ठीक है, यहाँ पे पुट कर दिया, बट दैट प्लस साइन जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा वी विल गेट माइनस, सो दैट्स व्हाई वी पुट माइनस. तो आपको यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा. ठीक है बेटा, बाकी क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको 2 एक्सप्लेन किया. पहला पार्ट में x प्लस 3 कंसिस्टिंग ऑफ 2 टर्म वेयर x इज योर वेरिएबल एंड 3 इज योर कांस्टेंट. क्वेश्चन नंबर 2 में आपने कांस्टेंट और वेरिएबल बताने हैं. एंड सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बताना है कि जो पॉलिनोमियल्स हैं या एक्सप्रेशंस हैं ये मोनोनोमियल है, बायोनोमियल है, ट्राइनोमियल है. सो पार्ट 1 इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 टर्म x प्लस y माइनस z. So that is why they are called trinomial. It is consist of 3 terms. अगर 2 टर्म्स होंगी तो उनको हम बायोनोमियल बोलेंगे, एक टर्म होगी तो उसको हम मोनोनोमियल बोलेंगे. ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज. और एक बात आप सबने याद रखनी है, यू हैव टू फॉलो मैथमेटिक्स बुक ऑफ पंजाब, टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 7. ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज.